Good morning, dear students. How are you? Today I am going to discuss in the class poem which title is Wind. So let us discuss this poem. But before we read this poem, let me introduce the writer of the poem. Firstly, this poem was written by A.K. Ramanujan in Tamil language. After that, this poem was translated from Tamil into English by Subramaniam Bharati. So, now let us go to the poem. Read. Is nature always gentle or can it be dangerous? क्या जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो हमेशा से विनम्र स्वभाव वाली होती है, जेंटल होती है, वो काइंड होती है, दयालु होती है, और कैन इट बी डेंजरस, या ये हमारे लिए कभी खतरनाक भी हो सकती है? हाउ, कैसे हो सकती है ये हमारे लिए जेंटल, किस तरीके से, कैसे हमारे लिए खतरनाक हैं? कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल इवेंट्स? क्या आप कोई वास्तविक घटनाओं में से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं? So in the very opening, before we read the poem, we have been introduced that nature sometimes is very gentle, it's very kind to human beings and all creatures on the earth, but sometimes it proves very dangerous. It's very hazardous and can bring great destructions to not only mankind but also all the creatures living on earth. Can you think of a few examples of actual events? You should think about more incidents or accidents which are caused by the strong winds on earth or storm. So, now moving ahead, in the first stanza, what does the poet say as the poem opens? In the first stanza, the poet says, "Wind, come softly. Wind, come softly, do not break the shutters of the windows, do not scatter the papers, do not throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down." तो कवि कहता है, पोएट कहता है, विंड कम सॉफ्टली, की हवा आप धीरे धीरे बहो, आप सॉफ्टली आओ, मीन्स इन द वेरी ओपनिंग ऑफ द पोएम द पोएट एड्रेसिंग द विंड सेज दैट the wind should blow slowly, it should not come fastly, it should blow softly, tenderly. Don't break the shutters of the windows, और आप जो खिड़कियों के शटर्स मत तोड़िए. एड्रेसिंग द पोएम, सजेस्टिंग द विंड, द पोएट advises the wind that it should not break the shutters of the windows, झांकियों के, खिड़कियों के, इसको नहीं तोड़ना चाहिए. झांकियों की खिड़की हैं जो, उनको इसे नहीं तोड़ना चाहिए. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और इट शुड नॉट स्कैटर द पेपर्स, इट नॉट स्कैटर द बुक्स, इसको कागज़ों को भी नहीं बिखेरना चाहिए. ड्राइंग रूम में जो कागज़ पड़े हुए हैं, इसको नहीं, उनको नहीं बिखेरना चाहिए. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो अलमारी के अंदर, सेल्फ के अंदर जो बुक्स रखी गई हैं, उन बुक्स को भी से नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए. देयर, लुक व्हाट यू डिड. एड्रेसिंग द पोएम, ही सेज दैट द विंड शुड टेक केयर ऑफ व्हाट इट इज़ डूइंग, इसको ध्यान देना चाहिए कि ये क्या कर रही है. यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सभी चीज़ों को कमरे में गिरा दिया है, सभी चीज़ों को एक दूसरी जगह बिखेर दिया है. तो इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएट एड्रेसिंग द विंड सेज दैट ही रिक्वेस्ट, ही एडवाइजेज द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, टू ब्लो स्लोली एंड टेंडरली. वो रिक्वेस्ट करता है, एडवाइज करता है हवा को कि ये धीरे धीरे बहे और आराम से ये चले. और साथ में वो एडवाइज करता है कि जो घर में खिड़कियाँ लगी हुई हैं, उन खिड़कियों को मत तोड़े. और वो कहता है कि कमरे के अंदर जो कागज़ हैं, उनको स्कैटर मत करें, उनको मत बिखेरें. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो अलमारी के अंदर किताबें रखी गई हैं, उनको भी ये मत बिखेरें. और वो फिर कहता है हवा को, उसका ध्यान आकर्षित करता हुआ एक तरफ, वो कहता है उसको देखो, उस तरफ देखो. यू थ्रो देम
all down, तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है. In the very first stanza of the poem, the poet advises the wind to blow softly, tenderly and slowly. He suggests the wind that it should come very slowly, it should come tenderly, and should not dare, to break the shutters of the windows, in the house. Again, he says that it should not scatter the papers in the drawing room. The poet had put some papers there, and the wind is scattering the papers. So, the poet advises the wind not to scatter those papers, and he again advising the wind says that it should not throw away the books from the shelf, there are some books which are kept by the poet in the shelf in his study room, and seeing that the strong wind is blowing, he advises wind that it should blow slowly, it should blow tenderly, and should not throw away the books from the shelf. Again, attracting the attention of the wind, the poet says that the wind has thrown all the items, all paper, books, down on the floor of the house. It should not have done so. In the next stanza, the poet says, "You tore the pages of the books." He, addressing the wind, says that the wind has torn all the pages from the books. वो हवा को संबोधित करते हुए कहता है कि हवा ने सारे के सारे किताबों के पेज है वो फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और ये हमारे लिए दोबारा बरसात लेकर आया है. जो हवा अपने साथ बरसात लेकर आई है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बड़ी चतुर हो. वो कहता है कि हवा को, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स, कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर वस्तुओं का, तो कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में वो बड़ी चतुर है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल कमज़ोर घरों को ये गिरा देती है. क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती है. कमज़ोर जो क्रम्बलिंग रेफ्टर्स है, कड़ियाँ हैं घर में लगी हुई, बल्लियाँ, उनको भी ये तोड़ देती है. क्रम्बलिंग वुड, और लकड़ियाँ जो घर में यूज हुई है उनको भी ये तोड़ देती है. वृक्षों को तोड़ देती है, जंगलों को उखाड़ देती है. वुड्स मीन्स हेयर फॉरेस्ट ऑल्सो, और ट्रीज़ आप कह सकते हैं, ट्रीज़ और जंगल को ये वुड कहा गया है. क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो कमज़ोर शरीर हैं उनको भी ये गिरा देती है. क्रम्बलिंग लाइफ्स, और ज़िंदगियों को, कमज़ोर ज़िंदगियों को भी गिरा देती है. क्रम्बलिंग हार्ट्स, और दिलों को भी, कमज़ोर दिलों को भी हवा है वो तोड़ देती है, उनको और कमज़ोर बना देती है. इन द नेक्स्ट स्टैंजा एड्रेसिंग द विंड, द पोएट सेज दैट the wind has torn all the pages from the books which are kept in the almirah, and it has not come alone. It has brought rain along with it, and now not only the wind is doing harm to us, but also the rain which was accompanied by it also doing great harms to creatures, to weaklings. And again he says that the wind is very clever. He says that wind is very clever, and it poke funs, it make funs of the weak people, it make fun of the weaklings, it make fun of it laughs at the weaklings. कमज़ोर लोगों के ऊपर, कमज़ोर पीपल हैं, लोग हैं जो कमज़ोर चीज़ें, उनको मजाक उड़ाती है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, और जो कमज़ोर घर होते हैं, वीक हाउसेज हैं, तो ऐसे घरों को भी इट ब्रेक्स डाउन, ये गिरा देती है. क्रम्बलिंग डोर्स, और दरवाज़ों को घरों के, इट ब्रेक्स डाउन द रेफ्टर्स, इट ब्रेक्स डाउन द वुड्स, ट्रीज, everything it destroys that comes its way. It breaks down the weak bodies, human beings, children and old ones,
it also crumble down all lives which come its way. In other words, you can say that wind is very powerful against the poor, against the weaklings. ये जो कमज़ोर लोगों के विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा तरीके से ताकतवर रूप में होती है. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि हवा कमज़ोरों का मजाक उड़ाती है. इन नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कमज़ोर जो दिल होते हैं, कमज़ोर जो मन के लोग होते हैं, उनको भी हवा बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो उनको बड़े परेशान करती हैं, उनको कमज़ोर कर देती है. द विंड गॉड विनोज एंड कर्सेस देम ऑल. द विंड गोज, वायु देवता, विनोज पछोड़ता है. पछोड़ता है मतलब जैसे एक फसल है गेहूँ है, उसको पिसाई करने से पहले उसको पिछोड़ा जाता है, तो उसी तरीके से विंड गॉड है वो भी पिछोड़ता है कमज़ोर और ताकतवर लोगों को. जो ताकतवर होते हैं वो बच जाते हैं, एंड जो वीक होते हैं वो उनको क्रश कर देता है. द विंड गॉड विनोज पछोड़ता है वायु देवता, एंड कर्सेस देम ऑल और उन सबको वो क्रश करता है, तोड़ देता है, उनको ब्रेक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. कर्सेस देम ऑल मीन्स ऑल द वीकलिंग्स आर कस्ड बाय द विंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स. ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम. तो जो भी आप वायु को कहोगे वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी. जैसा आप चाहते हैं हवा से करवाने के लिए वो हवा ऐसा कभी नहीं करेगी. द विंड विल नेवर ओबे योर ऑर्डर्स, इट विल नेवर डू द सेम एज यू वांट इट टू डू. सो इट ऑलवेज रन इट्स कोर बाय इट्स ओन चॉइस. सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट अस जॉइन द डोर फैमिली. तो यहाँ पे कवि है जो पोएट हैं वो सजेस्ट करता है कि हमें हवा को समझाने के बजाय हमें अपने घरों को ही ताकतवर बना लेना चाहिए, उनको घरों को मजबूत कर लेना चाहिए, और अपने घर के दरवाजे हैं उनको टाइटली ज़ोर से बंद कर लेना चाहिए. सो हेयर द पोएट एडवाइजेज दैट इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग द विंड we should better would be if we build our homes strong, and we should shut the doors of the home firmly so that it has less impact on us. Practice to form the body. और हमें अपने जो शरीर है, शरीर को ताकत करने की उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए कि हमारा शरीर है जो फर्म बने, स्ट्रॉन्ग हो जाए. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. और हमें अपने दिलों को भी स्थिर बना लेना चाहिए. मतलब वी शुड मेक आवर हार्ट्स सो स्ट्रॉन्ग दैट दे बीट, दे डू नॉट ब्रीट क्विकली. वो ज़ोर ज़ोर से न धड़के, हमें ऐसे अपने दिलों को मजबूत बना लेना चाहिए. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. हमें ऐसा करना चाहिए और फिर देखेंगे कि हम हवा हमारे साथ वो मित्र बन गई है, हमारी हवा दोस्त बन गई है. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. क्योंकि हवा है जो हमेशा कमज़ोर आग को बुझा देती है. जैसे आपके घर में दीपक है, यू हैव लिट अप सम कैंडल, सम लैम्प, सो इफ़ द विंड ब्लोज स्ट्रांगली इट ब्लोज आउट एवरीथिंग. ये मतलब जो वीक फायर होती है उसको बुझा देती है, जस्ट एज it distinguishes easily the lamp or the candle. But if there is a strong fire, अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा आग लगी हुई है तो instead of blowing it out, it flourishes it, it develops it, it gives its power. और इसको हवा जो मजबूत आग ज़्यादा लगी होगी तो उसको ज़्यादा फैलाएगी, उसको मजबूत कर देगी, उसको और ज़्यादा बढ़ाएगी, फ्लोरिश करेगी. He makes strong fires roar. हवा बहने पर जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उनको और ज़्यादा भड़का देती हैं, आगों को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, एंड फ्लोरिश, और उनको फैला देती है, फ्लोरिश. ओके. सो द विंड व्हेन फेसेस, व्हेन ब्लोज अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फायर्स, इट फ्लोरिशेस दैम, इट इंक्रीजेस द पावर ऑफ द फायर. बट इफ इट इज ब्लोइंग अगेंस्ट a candle, against a little lamp, it easily blows out candles and lamps. But in case of strong fires, it flourishes them. So the poet here wants to convey a message that better before advising the
air advising the wind, we should make ourselves strong enough that we are able to face any consequences, any type of wind. किसी प्रकार की कोई हवा है, किसी प्रकार की कोई मुसीबतें हैं, उनसे जूझने के लिए हमें अपने आप को इतना काबिल बना लेना चाहिए कि वो मुसीबतें, वो समस्याएं हमारा कुछ न बिगाड़ सकें और हम ईजिली उनको ओवरकम कर सकें, उनको काबू पा सकें. यहाँ पे कवि ने एक मैसेज दिया है थ्रू द हेल्प ऑफ दिस पोएम. His friendship is good. We praise him every day. We should never criticize the friendship of wind. हमें कभी भी हवा की जो दोस्ती है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए. हमें अपने जो स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस हैं, जो उनकी क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें उनके साथ अपने आप को ताकतवर रूप में खड़ा करके मित्रता कर लेनी चाहिए. और फिर हम देखेंगे कि वी प्रेज हिम एवरीडे, हम हर दिन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और हम भी उससे प्रशंसा पा रहे हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. इफ स्टिल देयर इज एनी क्वेरी, एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड फ्रॉम द पोएम, मेक मी पॉइंट मी आउट. You can write me through WhatsApp. I will try to explain it again. But before I end up this video, I wanted to say you that you should first of all make summary of this poem, write word meanings and dictation, learn word meanings and learn pronunciation of difficult words. And after that you should solve internal question answers of the present poem. Okay dear students, this is enough for today. May Goddess Saraswati bless you. We shall continue tomorrow. Thank you and have a good day.